Hello everyone and welcome to the channel of Residential Paramount Mission School. This is CK Yadav and I am here with the question answers for class 7th of very first chapter, that is 3 questions. 3 questions is the title of this story. So we will do MCQs, fillers, true false and subjective question answers and all. So we are going to start the very first question in MCQ. Many wise dash came to the king. Here main is the correct option. Option number A, man. Second one, the hermit lived in a dash. hermit कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, अर्थात in wood. Now the king turned around and saw a dash man running towards him. कैसे व्यक्ति को उसने दौड़ते हुए आते देखा? बियर्ड मैन अर्थात दाढ़ी वाला व्यक्ति. यानी क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन ए. और क्वेश्चन 3 मिस हो गया. चलिए इसको फिर से करते हैं. द हर्मिट वॉज डैश. हर्मिट कैसा था? ओल्ड, वीक और बोथ. ओल्ड एंड वीक, तो बोथ, वो ओल्ड भी था और इस वजह से वो वीक भी था. सो ऑप्शन सी is correct option for this question. Next one, I beg you to answer my dash. I beg you to answer my questions. Answer my questions. Now fill in the blanks. What is the most dash thing for him to do? So what is the most important thing? Here we have to fill in the blanks according to the story that we have read. So here important thing for him to do. These things could not wait for the dash of the council. Decision. These things could not wait for the decision of the council. The dash therefore would have to go to magicians. The king, राजा को जाना पड़ेगा magicians के पास. Next, who are the dash I need most? Who are the people I need most? And the last is, here comes someone dash, said hermit, running. Here comes someone running. Now true false statement we will do. The king had 4 questions. The king had 4 questions. उसके 4 सवाल थे. ये false statement है. 3 questions थे उसके. So first one is false. Second, he went to a hermit in a wood. वो जंगल में एक hermit के पास गया था. राजा जंगल में हर्मिट के पास गया था, अर्थात उस वैरागी के पास, सन्यासी के पास गया था. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. द wounded मैन वॉज हिज enemy. जो व्यक्ति चोटिल था वो राजा के दुश्मन थे. ये ट्रू स्टेटमेंट है. जी हाँ, वो दुश्मन था, वो अटैक करने के लिए आया था इस पे. So true. Next, the king did not help the hermit. ये false statement है. King ने हेल्प किया था hermit को उसका स्पैड लेकर के और ग्राउंड को डिग किया था, खुदाई किया था उसने. अर्थात इस तरीके से उसने हेल्प की थी, राजा ने हेल्प की थी उस वैरागी का. At last the king get his answers. अंत में राजा को उत्तर मिल गया. ये ट्रू स्टेटमेंट है. हाँ, मिल गया था. सो ट्रू.
नाउ यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। इस यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है जिसका मीनिंग भी गिवन है, जिसका हमें क्या करना है, अपने एक्सप्रेशंस में सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड इज ऑल एट वंस। हियर इज ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, सडनली। सेकेंड इज वंस एंड फॉर ऑल, फाइनल डिसीजन। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, फाइनल डिसीजन, अर्थात अंतिम निर्णय। ऑल ओवर, ऑल ओवर मीन्स फिनिश्ड, समाप्त। आफ्टर ऑल मीन्स reasonable. So now we will use these words to make sentences. First one is all at once. All at once का मतलब हम लोगों ने सडनली देखा है। इससे एक सेंटेंस देखते हैं कि I was surprised to see him. मैं उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। Because क्योंकि he appeared there all at once, क्योंकि वहाँ वो अचानक प्रकट हुआ, अचानक आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज वंस एंड फॉर ऑल। ये फ्रेज है वंस एंड फॉर ऑल, फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय। I told you one and for all that I will do MBA. मेरा ये अंतिम, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये मेरा अंतिम निर्णय है MBA करने का। नेक्स्ट ऑल ओवर, फिनिश्ड। द मीटिंग वॉज ऑल ओवर व्हेन ही रीच्ड। जब वो पहुंचा मीटिंग समाप्त हो चुकी थी, फिनिश्ड हो गई थी। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल, रीजनेबल। आफ्टर ऑल ही कुड नॉट आंसर। आफ्टर ऑल ही कुड नॉट आंसर, किसी भी तरह से वह जवाब नहीं दे पाया। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। wounded here means severely injured, गंभीर रूप से चोटिल को ही wounded कहते हैं। सो here wounded will match with severely injured. Second one is someone. Here someone's meaning is not given, so we accept this. इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। forgive means pardon. forgive क्षमा मांगना, pardon भी वही होता है। faithful loyal, here is misprint, कोयल लिखा गया है जो कि मिसप्रिंट है, सो यू विल डू इट लोयल। फेथफुल लोयल अर्थात विश्वासी, फेथफुल लोयल। नाउ पीटी का मतलब होता है किसी पे दया दिखाना, फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए दुख प्रकट करना। सो फील सॉरी फॉर, पीटी विल मैच विथ फील सॉरी फॉर। रिटर्न मीन्स गिव बैक, वापस देना। सो दिस वे वी कंप्लीटेड ऑब्जेक्टिव। एंड नाउ एक और देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सब्जेक्टिव, तो 9th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि इसको हमने कॉपी में नहीं कराया है, केवल बुक में ही लिख दिया है। सो यहीं देखते हैं इसको। विच वर्ड्स इन द स्टोरी मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वोकैबुलरी पार्ट से ही हैं कि इनमें से कौन से शब्द का विपरीत मतलब है जो स्टोरी में हम लोगों ने देखा है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, सो इसका अपोजिट हो जाएगा वीकनेस।
बी है सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा या जिसको जानते हैं हम। लेकिन स्ट्रेंज का मतलब होता है जिसके जैसा कुछ नहीं हो, कोई नहीं हो। स्ट्रेंज विचित्र जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब आराम किया। इसका अपोजिट टायर्ड, जो स्टोरी में हम लोगों ने देखा है, टायर्ड थका हुआ। लास्ट वन इज रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को बरी कर देना। लेकिन सेज, सेज का मतलब होता है पकड़ लेना, हड़प लेना। तो ये इनके एंटोनिम हुए, अर्थात अपोजिट वर्ड हुआ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, विल कम to long answer or subjective answer type question. Very first question is, why did the king want to know the answers to his 3 questions? राजा अपने 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों चाहता था? इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि he thought that, राजा को ऐसा लगता था कि he would never fail if he knew the answers to his 3 questions. क्योंकि राजा को लगता था कि अगर वो अपने 3 प्रश्नों का जवाब जान लेता है तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या था? व्हाट वाज द परफेक्ट आंसर टू इट, और इसके सही जवाब क्या थे? देखते इसका आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोगों को राजा को सुनना चाहिए। द परफेक्ट आंसर वॉज डैट, सही उत्तर इसका ये था कि ही शुड लिसन टू द पर्सन हु आर विद हिम, हु आर विद हिम, who are with him at a particular time। यानी राजा को उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो उस समय उसके समक्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd here is, why did someone say that the king should go to magicians? क्यों किसी ने कहा कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए? क्यों किसी ने ऐसा कहा? इसका आंसर है बिकॉज एनी मैजिशियन कैन नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। कि केवल मैजिशियन को ही, अर्थात जादूगर को ही पता होता है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट आंसर डिड ही गेट फॉर हिज फर्स्ट क्वेश्चन। राजा अपने पहले प्रश्न के लिए क्या उत्तर पाया, उसे क्या उत्तर मिला था? इसका आंसर है देयर इज ओनली वन टाइम that is important, there is only one time that is important and that time is now। केवल एक ही समय है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और वह समय अभी का समय है। Question number 5th, question number 5th here is, why did the king take the spade from the hermit? राजा उस वैरागी से कुदाल क्यों ले लेता है? आंसर इसका है the king took the spade for digging the ground as the hermit was tired of working and was breathing heavily। राजा ने उस बैरागी से कुदाल इसलिए ले लेता है
क्योंकि वो बैरागी काम करते करते थक जाता है, उससे राजा कुदाल लेकर और उसके जगह पे वो खुदाई करने लगता है। अच्छा, हर एक चीज़ और मैं बताना ये छूट गया कि इसलिए ले लिया था क्योंकि वो बैरागी जो था खुदाई करते करते थक गया था और उसके सांसें भी तेज हो गई थी, और इस वजह से राजा को लगा कि इसके बदले कुछ काम मुझे कर देनी चाहिए, इसलिए उसने क्या किया था, स्पैड को अर्थात कुदाल को ले लिया था। किससे? उस बैरागी से। क्वेश्चन नंबर 6 इज whom did the king help? How? राजा ने किसकी मदद की और क्यों की और कैसे की? सॉरी, राजा ने किसकी मदद की और कैसे की? The king helped a wounded man. राजा ने एक चोटिल व्यक्ति को हेल्प किया। He helped him by carrying him in the hut and stopping his bleeding. राजा ने उसकी मदद इस तरह की कि उसने कैरी करके अर्थात उठाकर झोपड़ी में ले गया, उस बैरागी के झोपड़ी में ले गया, उस बैरागी के झोपड़ी में उस wounded पर्सन को ले गया और उसके ब्लड को रोकने में सहायता की। Why did the wounded man ask for the king's forgiveness? Why did the wounded man ask for the king's forgiveness? वो जो wounded man था, जो जख्मी व्यक्ति था, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? आंसर है, the wounded man asked the king for forgiveness because he wanted to kill the king and the king had saved his life. उसने माफ़ी इसलिए मांगी थी राजा से क्योंकि वह राजा की हत्या करने आया था और जिसकी हत्या करने उसने आया वही उसकी ज़िंदगी को बचाया, अर्थात राजा ने उसकी ज़िंदगी को बचाया था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था कि हे राजा, मैं आपकी जान लेने के मकसद से आया था और आपने ही मेरी जान को बचाई। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 क्वालिटीज ऑफ द हर्मिट। हर्मिट के अर्थात वैरागी के 2 क्वालिटीज ऑफ हर्मिट। वैरागी के 2 गुण को बताना है, 2 क्वालिटीज को बताना है। तो उसके 2 क्वालिटीज क्या थे? द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। एक तो उसकी क्वालिटी थी कि वैरागी जो था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी वो जंगल छोड़ा नहीं, वहीं रहता था, ये इसकी क्वालिटी थी। एंड ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और वो केवल साधारण लोगों से ही मिला जुला करता था, किसी स्पेशल लोग से नहीं मिलता था। इस वजह से तो हम लोगों ने देखा था कि राजा जब उससे मिलने के लिए जाता है तो राजा की वेशभूषा में नहीं जाता, वो एक साधारण व्यक्ति का वस्त्र धारण करके और उसके पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो केवल साधारण लोगों से मिलता है, अगर मैं राजा की वेश में जाऊँगा तो शायद वो मुझसे मिलने से इनकार कर दे। So my dear students, this way we completed the question answers, all question answers related to this chapter, and your homework is to prepare fair copies, and when you will be called to submit your fair copies to the school office, then you will send. And if you have any problem related to this chapter, then please call on the given contact number after one day. Thank you.